ہو چکی ہے کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی موت ہو گئی ہے۔ جیسیکا کو ایک کارگو ٹریلر میں اپنی چیزیں پیک کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ روڈ ٹرپ پر جا سکے۔ جب وہ تیاری مکمل کر لیتی ہے تو اپنے فون پر ایک میپ ایپ کھولتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر سے باہر 4 دن کے ٹرپ پر جا رہی ہے تاکہ نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ اس کا شہر سے باہر کا یہ سفر اچھی طرح سے جاری رہتا ہے۔ وہ مووی کی شروعات ایک عورت سے ہوتی ہے جس کا نام جیسیکا ہے، جو حال ہی میں ودوا ہو چکی ہے کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی موت ہو گئی ہے۔ جیسیکا کو ایک کارگو ٹریلر میں اپنی چیزیں پیک کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ روڈ ٹرپ پر جا سکے۔ جب وہ تیاری مکمل کر لیتی ہے تو اپنے فون پر ایک میپ ایپ کھولتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر سے باہر 4 دن کے ٹرپ پر جا رہی ہے تاکہ نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ اس کا شہر سے باہر کا یہ سفر اچھی طرح سے جاری رہتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے ڈرائیو کو انجوائے کرتی ہے اور آخر وہ ایک ہائی وے پر پہنچتی ہے جو جنگل کے بیچوں بیچ ہے۔ اب کچھ دیر بعد وہ ایک خاموش سڑک پر ڈرائیو کرتی ہے جہاں اس کے سامنے ایک بلیک کلر کی گاڑی آہستہ چل رہی ہوتی ہے اور عجیب سا بیہیو کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بلیک گاڑی بہت آہستہ چل رہی ہوتی ہے اور جب بھی جیسیکا اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ گاڑی اچانک تیز ہو جاتی ہے۔ جیسیکا زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا لے اور دوسری لین میں جا کر گزر جائے، لیکن وہ کالی گاڑی بھی بالکل اسی سپیڈ سے چلنے لگتی ہے تاکہ جیسیکا واپس رائٹ لین میں نہ آ سکے۔ سچویشن اور بھی بگڑ جاتی ہے جب ایک بڑا ٹرک جیسیکا کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ کالی گاڑی پھر بھی آہستہ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ خوش قسمتی سے جیسیکا ٹرک کے ٹکرانے سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی کامیابی سے اس گاڑی کو اوورٹیک کر لیتی ہے۔ اب چند سیکنڈ میں وہ کالی گاڑی پھر سے تیز ہو کر جیسیکا کے قریب پہنچ جاتی ہے اور ہارن بجانے لگتی ہے۔ پھر دونوں گاڑیاں ایک چوراہے پر الگ ہو جاتی ہیں اور جیسیکا رک کر اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے سانس لیتی ہے۔ اسی شام وہ ایک پیٹرول پمپ پر گیس بھر رہی ہوتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ فون کال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھے تعلقات میں نہیں ہے، جبکہ اس کے باپ نے انہیں بات چیت کرنے اور اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ فون کال کے دوران جیسیکا کا دھیان بھٹک جاتا ہے جب وہ وہی کالی گاڑی دیکھتی ہے جو پہلے اس کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ پیٹرول پمپ پر آ کر رک جاتی ہے۔ جیسیکا ڈر جاتی ہے اور فوراً گاڑی چلا کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسیکا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ تھوڑا آرام کرے گی اور شہر کے ایک چھوٹے ہوٹل میں رات گزارے گی۔ جب وہ ہوٹل میں موجود ہوتی ہے تو اس کی ماں کی کال آتی ہے، مگر وہ کال کا جواب نہیں دیتی۔ سونے سے پہلے وہ اپنی اور اپنے مرے ہوئے ہسبینڈ کی کچھ پکچرز دیکھتی ہے اور ان خوبصورت لمحوں کے بارے میں سوچتی ہے جو انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ غصے اور غم کے درمیان وہ کچھ آنسو بہا دیتی ہے اور پھر سونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ صبح جب وہ روانہ ہونے والی ہوتی ہے تو ایک مشکوک نظر آنے والا اجنبی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ پر پلاسٹر لگا ہوتا ہے۔ جیسیکا تھوڑی حیران ہو جاتی ہے جب وہ اجنبی اپنے آپ کو وہی شخص بتاتا ہے جو کالی گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے معذرت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل پر میسیجز پڑھ رہا تھا اور اس لیے جو کچھ بھی ہوا اس نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ پھر وہ جیسیکا سے اور زیادہ سوالات کرنا شروع کرتا ہے، جیسے کہ کیا وہ یہاں کے قریب رہتی ہے اور کہاں جا رہی ہے، جو جیسیکا کو بہت عجیب لگتا ہے۔ وہ فوراً اپنی بات ختم کرتی ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آخر شہر چھوڑ دیتی ہے اور اب جنگل کے بیچوں بیچ ہائی وے پر گاڑی چلا رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کالی گاڑی کو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے اور وہی مشکوک اجنبی بیچ میں کھڑا نظر آتا ہے جیسے وہ گم گیا ہو۔ جیسیکا محتاط نظر آتی ہے اور فوراً اپنی گاڑی کا لاک لگا دیتی ہے۔ پھر وہ کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کر کے اس اجنبی کو اپنی بات کرنے دیتی ہے جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی گاڑی کا انجن اچانک بند ہو گیا ہے۔ وہ جیسیکا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے قریبی پیٹرول پمپ تک لفٹ دے دے۔ اپنی سیفٹی کے بارے میں فکر مند جیسیکا یہ مشورہ دیتی ہے، ಬೇಬಿಗೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಒದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇವಲ کہ وہ خود پیٹرول پمپ جا کر وہاں سے کسی میکینک کو بھیج سکتی ہے تاکہ اس کی مدد ہو سکے، لیکن وہ اجنبی انکار کرتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ جیسیکا خود اس کی مدد کرے۔ اس پر جیسیکا کو شک ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا اگلا سٹاپ رات دیر سے ایک اور پیٹرول پمپ پر کرتی ہے۔ آرام کرتے ہوئے جیسیکا آخر اپنی ماں کا فون اٹھا لیتی ہے۔ اس کی ماں غصے میں لگتی ہے کیونکہ جیسیکا نے بغیر اطلاع دیے شہر چھوڑ دیا۔
लेकिन अब जेसिका ने अपना फैसला कर लिया है। वो बताती है कि वो ये सब अपने हस्बैंड से आगे बढ़ने के लिए कर रही है। तभी उसे हैरानी होती है जब वो फिर से वही काली गाड़ी देखती है, जो पार्किंग लॉट में आकर रुकती है और रेस्टिंग एरिया में एंटर होती है। जेसिका डर जाती है और फौरन वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि वो अजनबी उसका पीछा कर रहा है। वो अजनबी उसकी खिड़की के पास आता है जैसा कि उसने सोचा था, लेकिन जेसिका उसके कुछ कहने से पहले ही गाड़ी चलाकर वहां से रवाना हो जाती है। मगर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो एक वाइट कलर की वैन आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिससे वो अजनबी दोबारा उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने आया है और जेसिका बिला वजह डर रही है। जेसिका उसे इग्नोर करती है और जैसे ही वो सफेद वैन रास्ते से हट जाती है, जेसिका फौरन गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। वो तेज गाड़ी चलाने लगती है, क्योंकि वो अपने रेयर व्यू मिरर से उस काली गाड़ी को पीछे आते हुए देख सकती है। इसी वक्त जेसिका फैसला करती है कि वो 911 को कॉल करेगी और बताएगी कि उसका पीछा किया जा रहा है। लेकिन जब ऑपरेटर उससे उसकी लोकेशन पूछता है, तो वो थोड़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे भी ठीक से नहीं पता कि वो कहाँ है। जेसिका और भी घबरा जाती है जब वो काली गाड़ी तेजी से उसके करीब आती है, लेकिन अचानक वो गाड़ी उसके सामने से गुजरकर अंधेरे में गायब हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि वो गाड़ी उस मशकूक अजनबी की नहीं थी। फिर जेसिका 911 को बताती है कि ये रिपोर्ट गलत थी, और वो थोड़ी सी सुकून में आ जाती है। लेकिन इसी लम्हे अचानक उसकी गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और गाड़ी किनारे की तरफ जाकर सड़क से उतर जाती है। जब वो बाहर जाकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसके कार्गो ट्रेलर का एक टायर फट चुका है। इसी दौरान वो काली गाड़ी उसकी तरफ आती हुई नजर आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फौरन अपने कार्गो ट्रेलर को गाड़ी से अलग कर देती है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करती है, मगर वक्त पर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती। इस बार वो मशकूक अजनबी फैसला करता है कि अब ड्रामा करने का वक्त खत्म हो चुका है, और फौरन उसकी खिड़की तोड़ देता है। जेसिका कुछ देर तक उसके साथ लड़ती है, मगर वो अजनबी उससे ज्यादा ताकतवर होता है और फौरन उसे एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। अगले दिन जब जेसिका होश में आती है, तो वो एक अनजान कमरे में होती है जिसकी खिड़कियां जालियों से बंद होती हैं और बाहर एक कांटेदार बाड़ वाली खुली जगह दिखाई देती है। वो बंद दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उसकी मदद हो सके। अचानक उसे बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो किसी और के नहीं बल्कि उसी मशकूक अजनबी के होते हैं। वो आदमी बस जेसिका को अकड़ कर देखता है, और जब वो उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, तो वो उसे कहता है कि खामोश रहे। फिर वो आदमी रात को दोबारा आता है और अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी के साथ कमरे के अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ता है और एक बहुत ही घटिया और गलीज मुस्कुराहट के साथ उसके पास आता है। जेसिका दोबारा उससे रहम की भीख मांगती है और अपनी आजादी के बदले में पैसे देने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी अपनी जगह से हिलता नहीं है और अजीब अंदाज में जवाब देता है कि वो पहली लड़की नहीं है जो ऐसा कह रही है, जिससे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है। फिर वो अजीबोगरीब आदमी जेसिका से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे। जेसिका उसे धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागती है, वो आदमी फौरन उसके सामने आकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो जेसिका को घसीट कर कमरे के बीच में ले आता है और फिर उस पर घुटने टेक कर उसका चेहरा चूमता है। फिर वो उसका आईपैड निकाल कर उसे दिखाता है, जिसमें जेसिका और उसके हस्बैंड के खुशगवार लम्हों की वीडियो होती है। फिर वो उसकी गर्दन में लटकी हुई शादी की अंगूठी को देखता है और पूछता है कि क्या उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दी थी। वो शुरू में जवाब देने में हिचकिचाती है, लेकिन आखिर वो कहती है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। लेकिन वो सीरियल किलर इस जवाब से खुश नहीं होता। वो जेसिका से जबरदस्ती ये उगलवाता है कि उसके हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी और उसने अपने हस्बैंड की लाश को सबसे पहले देखा। अगली सुबह जब वो जागती है, तो फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं खुलता। जब वो दरवाजे के की होल से झांकती है, तो देखती है कि चाबी दरवाजे की दूसरी तरफ चिमट गई है। फिर वो कमरे में इधर उधर देखती है और एक लकड़ी में अटकी हुई कील देखकर उसे निकालने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद वो अपनी जैकेट को सीधा करती है और उसे दरवाजे के नीचे से बाहर निकाल देती है। फिर उस कील की मदद से चाबी को धकेल कर बाहर निकाल लेती है। जब चाबी गिर जाती है, तो वो उसे कमरे के अंदर वापस खींच लेती है और फिर उसे इस्तेमाल करके दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी लम्हे वो सीरियल किलर खरीदारी से वापस आकर घर पहुंचता है
जिस पर जेसिका फौरन कमरे में मौजूद अलमारी में छुप जाती है, ठीक उसी वक्त जब वो कमरे में एंटर होता है। जेसिका घबराते हुए दरवाजे की दरार से उसको देखती है और कोशिश करती है कि खामोश रहे। इसी दौरान सीरियल किलर फोन कॉल उठाता है और ये पता चलता है कि कॉल उसकी फैमिली से आई है। वो अपनी छोटी बेटी से बात करता नजर आता है और प्यार से उसे कहता है कि वो अपनी मॉम को हेलो कहे और बताए कि उसका बिजनेस ट्रिप थोड़ा और लंबा हो गया है, इसलिए वो कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। फिर वो फोन बंद करके नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। जेसिका ये मौका देखकर फौरन घर से बाहर निकलकर जितना जल्दी हो सके जंगल की तरफ भागती है। सीरियल किलर जल्द ही उसका पीछा करने लगता है जब उसे एहसास होता है कि जेसिका फरार हो गई है। दूसरी तरफ जेसिका भागती रहती है, लेकिन अचानक वो लुढ़क जाती है और उसके पाँव में एक छोटी सी टहनी चुभ जाती है, जिसे वो तकलीफ से बाहर निकालती है। इस दौरान जब वो टहनी निकाल रही होती है, तो सीरियल किलर उसकी चीख सुन लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपने सामने मौजूद नदी में कूदने का फैसला करती है, क्योंकि वो सीरियल किलर बिल्कुल उसके करीब आ पहुंचता है। उसे पता है कि वो डूब सकती है, लेकिन जेसिका फैसला करती है कि वो पानी में छलांग लगाएगी और दरिया के बहाव से जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाएगी। आखिर वो जिंदा बचकर बाहर निकल आती है। दरिया का बहाव उसे किनारे पर ले आता है, तो वो दोबारा जंगल की तरफ चलना शुरू करती है और एक लकड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक उसे कदमों की आवाज आती है, जिस पर वो फौरन छुपकर रुक जाती है और इंतजार करने लगती है। कुछ लम्हे बाद जेसिका उस आदमी पर लकड़ी से वार करती है, लेकिन ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक बूढ़ा शिकारी था जो अचानक हमले से हैरान रह जाता है। वो फौरन उससे माजरत करती है और उससे मदद की रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और उससे उसका फोन मांगती है, मगर बदकिस्मती से उसका फोन टूट चुका होता है क्योंकि जेसिका ने गलती से उसके फोन पर वार किया था। वो शिकारी जेसिका पर तरस खाता है और उसे अपने साथ गाड़ी तक ले आता है और अपनी बीवी के बूट्स उसे देता है। फिर वो दोनों मिलकर गाड़ी में सवार हो जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। इस दौरान वो शिकारी जेसिका को अपना सैंडविच खाने देता है और उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो दोनों एक गिरे हुए दरख्त के सामने आ जाते हैं जो उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर जेसिका बहुत डर जाती है और वो दरख्त को हटाने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत भारी होता है। बिल्कुल इसी लम्हे वो सीरियल किलर उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। बूढ़ा शिकारी जेसिका को तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो घबराए नहीं। फिर सीरियल किलर शिकारी से कहता है कि जेसिका उसकी बहन है, जो घर से भाग गई थी और उसको दिमागी बीमारी है, जिससे शिकारी शदीद कंफ्यूजन में पड़ जाता है। इस लम्हे शिकारी उसका यकीन करना शुरू कर देता है और सीरियल किलर को जेसिका को अपने साथ ले जाने देता है। मगर जब सीरियल किलर जेसिका को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश करता है, तो शिकारी को शक हो जाता है। वो फौरन बंदूक से उसे धमकी देता है, जिस पर सीरियल किलर जेसिका को छोड़ देता है। जेसिका जब जंगल की तरफ भागती है, तो उलझा हुआ शिकारी सीरियल किलर से उसका फोन मांगता है, क्योंकि अगर जेसिका वाकई उसकी बहन है, तो पुलिस शायद उसके दावे को साबित कर सकती है। लेकिन सीरियल किलर बूढ़े शिकारी को बुरी तरह से पीटता है और उसकी बंदूक से उसको गोली मारकर कत्ल कर देता है। इसी वक्त जेसिका जंगल की गहराई में भागना शुरू कर देती है, जबकि सीरियल किलर अब गन लेकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहा होता है। फिर रात हो जाती है और जेसिका आखिर एक चट्टान के नीचे तूफानी बारिश में आराम करने के लिए रुकती है। लेकिन बदकिस्मती से सीरियल किलर उसके करीब ही होता है और अपनी फ्लैश लाइट को चमकाते हुए उसे ढूंढ रहा होता है। जब जेसिका को लगता है कि खतरा टल गया है, तो वो जाने लगती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सीरियल किलर अभी भी वहां मौजूद है और उसके हाथ में गोली मार देता है। जेसिका फिर भी किसी तरह उसके सामने से बच निकलती है और दोबारा झाड़ियों के नीचे छुप जाती है, जबकि वो सीरियल किलर एक बार फिर उसे ढूंढता है। फिर वो सीरियल किलर जेसिका से बात करके उसे डराने लगता है। वो कहता है कि गोली की चोट के साथ उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर वो बाहर ना आई तो वो खून बहने से मर जाएगी। फिर वो उसे मशवरा देता है कि अब वो बाहर आकर उससे लड़ ले, क्योंकि उसके पास लड़ने की ताकत बाकी है। उसे और ज्यादा तंग करने के लिए वो राइफल नीचे रख देता है और कहता है कि वो अगले 1 मिनट तक आजाद है। अगर चाहे तो राइफल उठाकर उससे लड़ सकती है। वो जेसिका को और ज्यादा तंग करता रहता है, यहाँ तक कि उसके मरे हुए हस्बैंड का जिक्र करते हुए उसे कहता है कि उसका हस्बैंड भी बुज़दिल था, ताकि जेसिका के गुस्से को भड़का सके।
जेसिका के बाहर न आने का इंतजार करने के साथ साथ सीरियल किलर की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो गुस्से में आकर चिल्लाता है कि वो उसे पकड़ने आ रहा है। लेकिन जेसिका राइफल की तरफ नहीं बढ़ती, बल्कि इंतजार करती रहती है जब तक कि वो सीरियल किलर राइफल उठाकर चला ना जाए। इसके बाद जेसिका छुपने से बाहर आती है और थोड़ी दूर चलती है। फिर थकन की वजह से वो एक दरख्त के नीचे सो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि वो अभी भी जंगल के बीच में है। फिर वो खुद को मुश्किल इलाके में चलने पर मजबूर करती है जब उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। वो देख लेती है कि वो उसी सीरियल किलर की गाड़ी है। वो सीरियल किलर उस मुर्दा शिकारी की लाश निकालता है और उसे एक खोदी हुई कब्र में घसीट कर दफन कर देता है। जब वो लाश को दफन करने जाता है तो जेसिका चुपके से उसकी गाड़ी के करीब पहुंचती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा लॉक नहीं होता तो वो गाड़ी में बैठ जाती है और मदद के लिए कोई चीज ढूंढने लगती है। आखिर वो उसका फोन ढूंढ लेती है। इसी दौरान सीरियल किलर लाश को दफन कर देता है, इसलिए जेसिका फौरन गाड़ी के पिछले हिस्से में छुप जाती है। फिर वो सीरियल किलर दोबारा गाड़ी में आकर वापस ड्राइव करना शुरू कर देता है। वहां जेसिका को हथियार के तौर पर एक टायर रेंच मिलता है और वो फौरन 911 पर कॉल करने लगती है। मगर वो कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पाती क्योंकि वो ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि सीरियल किलर को ये महसूस होता है कि उसका फोन गायब है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है और जब उसे फोन नहीं मिलता तो गाड़ी रोककर दोबारा ढूंढने लगता है। जेसिका को ये एहसास होता है कि सीरियल किलर उसे देखने वाला है, इसलिए वो फौरन सामने आकर टायर रेंच से सीरियल किलर को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद सीरियल किलर पागलों की तरह गाड़ी चलाता है और बार बार जेसिका को अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जेसिका उसके बाजू पर वार करती है जिससे वो चाकू छोड़ देता है। फिर जेसिका टायर रेंच से उसका गला घोंटती है और उसकी कलाई में चाकू घोंप देती है, जिससे वो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील काबू में नहीं रख पाता और दोनों एक खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद जेसिका मलबे से बाहर निकलती है और अपनी धुंधली आंखों से एक हेलीकॉप्टर देखती है। हेलीकॉप्टर को देखकर उसे उम्मीद होती है और वो अपनी सारी ताकत लगाकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है, यहाँ तक कि वो एक खुली जगह तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट की जगह पर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अभी तक जिंदा है। जेसिका के पास अभी भी उसका फोन मौजूद होता है और वो फैसला करती है कि उसकी बीवी को कॉल करे ताकि वो उसे ये बता सके कि उसका हस्बैंड किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं है, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। जब जेसिका को सीरियल किलर करीब आता हुआ नजर आता है तो वो कॉल को स्पीकर पर लगा देती है ताकि वो किलर सुन सके कि उसने उसकी बीवी को सब बता दिया है। फिर जेसिका उसकी बीवी को अपना पूरा नाम बताती है और कहती है कि अगर वो आज मर गई तो ये उसके हस्बैंड की वजह से होगा। ये बात सीरियल किलर को बहुत गुस्सा दिला देती है और जब जेसिका उसकी तरफ फोन फेंकती है तो वो फौरन कॉल काट देता है। अब सीरियल किलर के चेहरे पर मुकम्मल मायूसी की झलक नजर आती है और जैसा कि दोनों के पास अब खोने को कुछ नहीं होता, वो एक खतरनाक लड़ाई शुरू कर देते हैं। किलर इस लड़ाई में अपना चाकू इस्तेमाल करता है, लेकिन जेसिका के पास टायर रेंच होता है जिसे वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। जेसिका टायर रेंच से कई जोरदार वार लगाने में कामयाब हो जाती है और आखिर उसके बाजू पर लगे हुए जख्म को काट लेती है। वो चाकू को उसके पेट में गहराई तक घोंप देती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेबस हो जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर मजीद ताकत नहीं रही, तो थकन से चूर होकर वो भी जमीन पर गिर पड़ती है। जेसिका की आंखों में सुकून की झलक नजर आती है जब वो उस सीरियल किलर को मरते हुए देखती है। आखिर हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ लेता है और उसे उठाने के लिए नीचे आ जाता है और यहाँ